میں نے ایم پی ایز کو، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور دوسرے لوگوں کو بلایا گیا لاہور میں. وہ میٹنگ شام کو تھی، میٹنگ تھوڑا لیٹ ہو گئی اور طویل چلی. کو جب رات کوئی 11-12 بجے کا وقت ہوا تو بریفنگ کمپلیٹ ہوئی تو میاں صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل جو ہے وہ آ کے موقع پہ جو آپ نے کہا ہے کام ہوا ہے میں دیکھوں گا، تو کل آپ 7 بجے کا ٹائم رکھ لیں. تو کمشنر صاحب کہنے لگے کہ سر اب 7 بجے تو شام کو اندھیرا ہو جاتا ہے. تو میاں صاحب نے کہا نہیں، میں شام کی نہیں، میں صبح 7 بجے کی بات کر رہا ہوں. اس طرح سے میاں شہباز شریف نے فیصل آباد سے محبت کی ہے. فیصل آباد والوں، فیصل آباد میں آج آپ دوسری موٹر وے سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. اس سے پہلے جو M2 جو لاہور سے اسلام آباد موٹر وے ہے، اس کو بھی آپ کے علم میں ہے کہ اس کا افتتاح بھی جو ہے وہ میاں شہباز شریف نے کیا تھا. فیصل آباد میں ایکسپریس وے ہو، فلائی اوورز ہوں، بڑی سڑکوں کا وسیع کرنا ہو، یہ سارے وہ کام ہیں. ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جو پچھلے 4 سال میں ہوا ہو، اور ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے کام کے اوپر تختی جو ہے وہ میاں شہباز شریف کے نام کی نہ لگی. اور یہی نہیں، اگر آپ تعلیم کے میدان کی بھی بات کریں تو زرعی یونیورسٹی کے علاوہ وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہو، وہ خواتین کی مدینہ یونیورسٹی ہو، یا وہ پنجاب میڈیکل کالج یونیورسٹی ہو، یہ بھی وہ منصوبے ہیں جو کہ میاں شہباز شریف نے فیصل آباد کو دیے ہیں. ہیلتھ کے سیکٹر میں لے لیں، الائیڈ ہاسپٹل اور DHQ ہاسپٹل کی کیپیسٹی جو ہے، الائیڈ ہاسپٹل کی کیپیسٹی جب میاں شہباز شریف چیف منسٹر پنجاب تھے 3 گنا کی گئی باقاعدہ بیڈ ٹو بیڈ، اور DHQ کو جو ہے وہ 2 گنا کیا گیا. اس کے علاوہ غلام محمد آباد ہاسپٹل، سمنا آباد ہاسپٹل، پیپلز کالونی ہاسپٹل، چلڈرن ہاسپٹل، FIC انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو دل کا ہاسپٹل ہے، یہ تمام ہسپتال جو ہیں یہ میاں شہباز شریف کا فیصل آباد کو تحفہ ہے. میں فیصل آباد کے میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں نے یہ صرف میگا پروجیکٹس کا ذکر کیا ہے. میں نے ان اربہا جو ہے وہ فنڈز کا اور ان منصوبوں کا جو دوسرے کاموں میں جو پارلیمنٹیرینز کی جو ہے وہ نشاندہی پہ خرچ ہوئے ہیں، میں نے ان کا ذکر نہیں کیا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ فیصل آباد سے اگر ان میگا پروجیکٹس کو نکال دیں تو پھر فیصل آباد میں بچتا کیا ہے؟ فیصل آباد پھر شہر نہیں، پھر ایک بہت بڑے گاؤں کا نمونہ دیتا ہے، جو کہ 1997 میں یہی کہا جاتا تھا. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ خدمت کا جو سفر ہے، یہ خدمت کی جو لگن ہے، یہ لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اثاثہ ہے. میاں نواز شریف کی قیادت میں میاں نواز شریف نے مسلم لیگ کو اقتدار کی جو ہے وہ کوریڈور سے نکال کے، غلام گردشوں سے نکال کے مسلم لیگ کو ایک عام آدمی کی جماعت بنایا. مسلم لیگ کو وہ ایک عام ورکر کے پاس لے کے آئے، اور مسلم لیگ میں خدمت کا جو تصور ہے وہ میاں شہباز شریف نے نہ صرف کر کے دکھایا بلکہ اس کا لوہا پوری دنیا میں منوایا. چائنا تک کے لوگ جو ہے وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ میاں شہباز شریف نے
जिस लगन से बिजली के वो कारखाने जिन्होंने बिजली के बहरान को ख़त्म किया वो लगाए, उन्होंने कहा कि ये कारखाने हम तो 5-6 साल में लगाते हैं, इन्होंने 3 साल में जो है ये कारखाने लगा के अपनी कौम को जो है वो अंधेरों से उजालों में ले आए। उन्होंने फिर वो पंजाब स्पीड का एक नाम जो अब तक जो है वो बड़ा चल रहा है, वो उन्होंने ये नाम उन्होंने दिया था। तो मैं आपसे कोई गिला नहीं, मैं ये अर्ज़ करनी चाहूँगा कि सियासत और खिदमत का ये इम्तजाज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है, उसके बाद वो साजिश जो हमारे खिलाफ हुई और जिसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ख़त्म किया गया, मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, 2018 का इलेक्शन चुराया गया और उसके बाद इस मुल्क पे एक ऐसे फितने को मुसल्लत किया गया जिसने 4 साल में इस मुल्क की बर्बादी कर दी, जिसने 4 साल में इस मुल्क में कोई तरक्याती काम नहीं किया। मैं पाकिस्तान की बात आपके सामने नहीं करता, आप मुझे फैसलाबाद की बात बता दें। मैंने यहाँ पे मुख्तसर वक्त में जो है वो दर्जन भर मंसूबों का जिक्र आपके सामने किया है। कोई उठे और मुझे बताए कि इन 4 सालों में कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक सड़क, कोई एक मंसूबा जो है वो फैसलाबाद में जो है वो उन्होंने जो है वो ज़ेरे तामीर लाया हो। बनाना तो बहुत दूर की बात है, मुकम्मल करना दूर की बात है, उसका संगे बुनियाद ही रखा हो। मासवाए इसके कि FIC में जो है वो जो तख्ती हमारे नाम की लगी हुई थी उसे उतार के जो है वो अपने नाम की तख्ती लगा ली। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे आखिर में ये अर्ज़ करनी चाहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत और मियां शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत की बुनियाद पे न सिर्फ पाकिस्तान को तरक्की दी है, न सिर्फ पाकिस्तान को वो आगे लेके बढ़े हैं। पाकिस्तान में कोई आप मोटरवेज का जिक्र करें या मेट्रोज का, आप हॉस्पिटल्स का जिक्र करें या हाईवेज का, आप हॉस्पिटल्स के साथ आप एयरपोर्ट्स की बात करें या आप किसी और बड़े मंसूबों की बात करें, हर जगह पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी हुकूमत और उनके कायदीन का जो है वो आपको नाम मिलेगा। पाकिस्तान को तरक्की देने और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का और मुस्लिम लीग का जो है वो बुनियादी रोल है। और हर वो बहरान, खा वो दहशत गर्दी का बहरान हो, जब कहा जाता था कि दहशतगर्द सवात आ गए हैं तो बस अब इस्लामाबाद आना चाहते हैं, जब लोड शेडिंग का बहरान जो 20-20 घंटे था, जब इंडिया ने एटमी धमाका किया और पूरी कौम फिक्रमंद थी, पूरी कौम ये सोच रही थी कि ये इंडिया जो एटमी कुव्वत बन गया है ये अब हमारा क्या हशर करेगा, और पाकिस्तान की इज्जत और गैरत का ये तकाजा था कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बने, पाकिस्तान एटमी धमाके करे। और पूरी दुनिया और अमेरिका का सदर 5-5 फोन कर रहा था कि खबरदार, अगर आपने एटमी धमाके किए, दुनिया किसी मुसलमान कुव्वत को एटमी कुव्वत नहीं देखना चाहती, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके 5 टेलीफोनों के जवाब में अगर किसी कायद ने, अगर किसी लीडर ने कौम की गैरत पे आवाज़ दी और कौम की इज्जत को दोबाला किया तो वो मियां नवाज शरीफ है, जिसने 5 टेलीफोनों के जवाब में 6 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनाया।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान सुने 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 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को हर बहरान से निकाला है। पाकिस्तान आज भी बहरान में है। पाकिस्तान डिफॉल्ट से तो बचा लिया गया है। जिस तरह से मेरे भाई असद महमूद साहब ने बात की है, और मैं ये भी बात ऑन रिकॉर्ड कहता चलूं कि हज़रत मौलाना फजल रहमान का हमेशा जो है वो मियां नवाज शरीफ के साथ साथ रहा है। हम उनके बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हर मुश्किल वक्त में जो है वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और मियां नवाज शरीफ का साथ दिया है। तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि मुल्क को उस मुश्किल से तो बचा लिया गया है कि जिस कुएं में ये फितना, ये नासूर जो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो दाखिल कर दिया गया था, ये पाकिस्तान की सियासत में एक नासूर है जो ये कहता है कि मैं अपने मुखालफिन के साथ बैठ नहीं सकता, मैं अपने मुखालफिन के साथ बात करने से पहले बेहतर मर जाऊं। आप मुझे बताएं कि इस तरह से कोई मुल्क चल सकता है? इस तरह से किसी मुल्क की सियासत जो है वो चल सकती है? 25 मई से 26 नवंबर तक और 26 नवंबर से 9 मई तक इसने क्या सियासत की है इस मुल्क में? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा, मैं घिराव करूंगा, मैं आ रहा हूं, मैं भागने नहीं दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा, ये सियासत की है इसने। वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो, और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो ताकि मुआशी इस्तेहकाम ना आ सके। और मियां शहबाज शरीफ जो है वो इस मुल्क को जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो है वो मुआशी तौर पे लेके आगे ना बढ़ सके, ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, इस मुल्क के गरीब जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएं, ये मुल्क बर्बाद हो जाए, ये सियासत की है इसने 9 मई तक। और फिर 9 मई को जो इसने किया है, अब ये कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। भाई जो जुर्म आपने किए हैं, जिस तरह से आपने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की है, जिस तरह से तुमने वहां पे उन नामों के ऊपर जो पाक नाम है हमारे ईमान के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक, जिन्होंने अपनी जिंदगियां जो है वो इस मुल्क के लिए कुर्बान की हैं, उनके नामों के ऊपर आप डंडे बरसाएं, उन्हें जूते बरसाएं, उनके जो है वो मुजस्मे उनको आप आग लगाएं, और उसके बाद आप कहें कि जी क्योंकि इलेक्शन है तो इसलिए जो है वो हमारे साथ जो है वो ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये कहाँ का असूल है? ये कहाँ का कानून है कि एक जुर्म कौम जुर्म करे, कौम के दिफा के ऊपर हमलावर हो, कौम के शोहदा पे हमलावर हो, और बाद में कहे क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना है लिहाजा इसलिए मुझे पकड़ा ना जाए, मुझे कुछ कहा ना जाए, मेरे खिलाफ को केस ना बनाया जाए। ये कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं है। जो उन्होंने किया है उसकी सजा जो है वो उनको मिलेगी। और आखिरी बात मेरे फैसलाबाद के दोस्तों भाइयों, आखिरी बात, पाकिस्तान जब भी किसी बहरान में मुब्तला हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को सुरखरू किया है। पाकिस्तान बहरान में है, मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में इन मुश्किलात के बावजूद आप यकीन करें कि अगर वक्त हो या होगा, अब इलेक्शन में आपसे हर गली महल्ले इलाके में बातें होंगी,
आप यकीन करें कि ये 14 माह की हुकूमत जो है ये कोई पुलिस राज से कम नहीं थी। ये इतनी मुश्किल हुकूमत थी कि ये मैं नहीं समझता कि मियाँ शहबाज शरीफ जैसा आदमी जो है वो उसके अलावा कोई आदमी जो है ये टाइम पूरा कर सकता था। ये इन्होंने अपनी तबीयत और अपनी जिंदगी इन्होंने अपनी तबीयत और अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी में जो इनका खासा रहा, जो इनका एक जो है वो इनकी सोच रही और जो जिस तरह से इन्होंने काम किया, मैं नहीं समझता कि इतनी लचक और इतना बैलेंस और इतनी अकोमोडेशन जो है वो किसी आदमी की तबीयत में जो है वो हो सकती है। तो बहरहाल इन्होंने जो ये 14 माह में जो मुल्क की खिदमत हो सकी, मुल्क को जिस तबाही से इन्होंने बचाया है, अब इस बहरान से अगर निकलना है, अगर सुरखरू होना है, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत पे आपने यकीन रखना है और उनको जो है वो कामयाब करना है। शेर कामयाब होगा तो पाकिस्तान इस बहरान से निकलेगा और पाकिस्तान जो है वो सुरखरू होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।